آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں، پیش ہے سرخیاں۔ انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے پر چین نے دی مودی کو مبارکباد، کہا دونوں ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے پرعزم۔ وزیر اعظم مودی کا 8 جون کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے کا امکان، کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مرکزی کابینہ کی سفارش پر چہارشنبے کو 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کر دیا۔ حکومت جمہوریت دستور و سیکولر کردار کے تحفظ کو ترجیح دے، بیرسٹر اویسی کی کامیابی پر مبارکباد، یونائیٹڈ مسلم فورم کا بیان۔ حیدرآباد میں شام سے بارش کا سلسلہ جاری، کئی نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی مفلوج۔ سعودی عرب میں دوران حج گرمی کی شدت کو 20 ڈگری سیلسیس تک کم کرنے کے لیے سڑکوں پر سفید پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ایشیائی ممالک کی طرح عرب ممالک بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں سعودی عرب میں حج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق عرفات میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اور عازمین حج کو بہتر سہولیات دینے کی غرض سے سعودی جنرل اتھارٹی نے مسجد نمرہ کے ارد گرد سفید رنگ کروانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے رود اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ سڑکوں پر مخصوص قسم کا سفید رنگ لگانے سے گرمی کی شدت کو 20 ڈگری سیلسیس سے کم کیا جا سکتا ہے۔ مینا میں جمرات جانے والے راستے پر یہی رنگ لگایا جا رہا تھا، وہاں 12 سے 15 ڈگری سیلسیس گرمی کم ہوئی۔ روڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق سڑکوں پر لگائے جانے والا مخصوص پینٹ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں دھوپ کی حرارت کم جذب ہوتی ہے۔ مسجد نمرہ کے قریب کم و بیش 25,000 مربع میٹر پر یہ سفید رنگ لگایا گیا ہے۔ گزشتہ برس یہی تجربہ محدود رقبے پر کیا گیا تھا، جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے تھے۔ چین نے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد NDA کو ہندوستان کے لوک سبھا انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ چین ہندوستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان موننگ نے چہارشنبے کو کہا کہ مضبوط اور مستحکم چین ہندوستان تعلقات دونوں فرقوں کے لیے مشترکہ مفادات کو پورا کرتے ہیں اور خطے اور دنیا میں امن اور ترقی کے لیے سازگار ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین دونوں ممالک اور عوام کے بنیادی مفادات سے آگے بڑھنے، مجموعی صورتحال اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دو طرفہ تعلقات کو صحت مند اور مستحکم ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مرکزی کابینہ کی سفارش پر چہارشنبے کو 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کر دیا۔ صدر کے سیکریٹریٹ کے مطابق چہارشنبے کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت منعقدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں صدر جمہوریہ سے 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس سفارش پر عمل کرتے ہوئے صدر مرمو نے آئین کے آرٹیکل 85 کی دفعہ 2 کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط کیے۔ قبل ازیں دوپہر میں نریندر مودی راشٹرپتی بھون گئے اور صدر مرمو سے ملاقات کی اور انہیں اپنا اور اپنی وزارتی کونسل کا استعفیٰ پیش کیا۔ ان کا سفارتی اور وزارتی کونسل کا استعفیٰ منظور کرنے کے بعد صدر نے ان سے نئی حکومت کی تشکیل ہونے تک بطور وزیر اعظم کام کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں آج صبح مرکزی کابینہ کی آخری میٹنگ ہوئی، جس میں 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ 17ویں لوک سبھا کی مدت 16 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی زیر قیادت NDA کو 18ویں لوک سبھا کے انتخابات میں اگر مکمل اکثریت مل جاتی ہے تو نریندر مودی کے 8 جون کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نریندر مودی کے ساتھ مرکزی کابینہ کے اراکین کے بھی
इसी दिन हलफ लेने का इम्कान है। देरी असना आज चारशंबे की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। मरकज़ी काबीना की आखिरी मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने वज़रा के साथ लोकसभा इंतखाबात के नताइज और एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद हुकूमत की तश्कील पर तबादिले ख्याल किया। दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने चारशंबे को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालती तहवील में दिया, जो मुबैना तौर पर एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम है। वाज़ेह रहे कि इनकी अबूरी ज़मानत में तिब्बी बुनियादों पर 7 दिन की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के मुकदमात की समाअत करते हुए रॉज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बाविजा की खुसूसी अदालत ने यह हुक्म दिया। केजरीवाल के वकील ने इनकी सेहत से मुताल्लिक़ खदशात के सवालों का जवाब देते हुए खुसूसी अदालत ने कहा कि तिब्बी मायने के हवाले से कुछ हिदायत दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद गौर किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने वज़ीर आला की अदालती तहवील में 19 जून तक तौसी करने का भी हुक्म जारी किया। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने चारशंबे को वाज़ेह किया कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए का हिस्सा हैं और आज विजयवाड़ा के करीब इंदौली में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो बीजेपी ज़ेरे क़यादत एनडीए के हिस्से के तौर पर इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। इन्होंने कहा कि मुझे सियासत का काफ़ी तजुर्बा है और मैंने मुल्क में बहुत सी सियासी तब्दीलियाँ देखी हैं। मैं नई दिल्ली में होने वाली एनडीए की मीटिंग में शिरकत करने जा रहा हूँ। टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी इत्तेहाद को ज़बरदस्त जीत दिलाने के लिए रियासत की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए नायडू ने इस जीत का क्रेडिट तीनों जमातों के कारकुनों की मरबूत कोशिशों को दिया। थैंक यू Ananda. What is the purpose approached by India bloc? No, don't bother. No, hear me I say, you are very loud, you want news, always. I am also experienced, I have seen so many political changes in this country. We are in NDA, I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report to you. Thank you. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अवाम का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने तफरीक़ा सियासी ताकतों व मीडिया के झूठे प्रोपोगंडों को मुस्तरद करते हुए अपने फैसले के ज़रिए मुल्क की जमहूरियत व दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सजाद पाशा, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी व दीगर ज़िम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि फ़ोरम के अरकान ने दीगर मिली तंजीमों व इदारों के साथ इस मुल्क की जमहूरियत, सेक्युलरिज़म व दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतखाबात के दौरान अवामी बेदारी की है। इंतखाबात से क़बल और इंतखाबात के दौरान मुल्क में जिस तरह नफ़रत, हक़ारत, एक ख़ास मज़हब की बालादस्ती, गुरूर, तकब्बुर, अमरियत पसंदी, अखलाक़ी इनेताद का रिकॉर्ड क़ायम किया था, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशें की गई थी। इस पस मंज़र में ये इंतखाबात अहमियत के हामिल रहे। मुल्क का दस्तूर, जमहूरियत व सेक्युलर किरदार का तहफ़्फ़ुज़, कसरत में वहदत, कौमी यकजहती, तमाम को मुसावाना हुकूक़, ये ऐसे अहम नुकात थे जिस पर अवाम ने अपने शऊर के ज़रिए इंतहाई फ़ैसला कुन रद्द अमल दिया। हैदराबाद की नशिस्त पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की 5वीं मरतबा मुसलसल भारी अक्सरियत व रिकॉर्ड तोड़ अक्सरियत से कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया अदा किया। फ़ोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हैदराबाद की बाविखार नशिस्त सारे मुल्क में अहमियत के हामिल हैं
बैरिस्टर ओवैसी की भारी अक्सरियत से मुसलसल कामयाबी इनकी क़यादत व मिली खिदमत का एतराफ़ है। फोरम ने इंतखाबात में बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी के लिए अवाम से अपीलें की थी और इस पर अवाम के मुस्बित रद्द-ए-अमल का शुक्रिया अदा किया। फोरम के ज़िम्मेदारों का ये एहसास है कि बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के पिछड़े तबक़ात व अक़लियतों की हिस्सेदारी और हुकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद की है, इसका हालिया इंतखाबात में असर दिखाई दिया। बैरिस्टर ओवैसी, जिन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन के एजाज़ मिल चुके हैं, 18वीं लोकसभा में मज़ीद शिद्दत के साथ कौम व मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी के फ़राइज़ को निभाते हुए मुल्क को एक नई सिमत दिखाएंगे। फोरम के ज़िम्मेदारों ने बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबाद देते हुए इनके हक़ में दुआएं की कि वो हिंदुस्तानी अवाम बिलखुसूस पिछड़ों व अक़लियतों के काज के लिए अपने मिशन को जारी व सारी रखें। चारशंबा 5 जून की शाम हैदराबाद शहर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। शदीद बारिश के बाइस कई नशीबी इलाक़ों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम भी देखा गया। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक का निज़ाम घंटों तक दरहम बरहम रहा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद और इसके आसपास के इलाक़ों में अबर आलूद आसमान, हल्की से दरमियानी बारिश के साथ गरज चमक और रात तक 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज 5 जून को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत बिला तरतीब 36.1 डिग्री सेल्सियस और 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्रीलिंगमपल्ली जोन में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने आज सुबह बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीज़न के तहत मुस्लिम धोबी घाट का ज़ाती तौर पर घर घर जाकर इलाके के लोगों से बातचीत की और इनकी शिकायत की यकसुई की। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। ये पानी उधर का साफ पानी है, साफ है ना, मैला है उधर का पानी है। ना भैया भूल गली पानी आ रहा मालूम ये साफ है ना, उधर भी नहीं है थोड़ी देर 5 मिनट आ रहा है, इसके बाद बंद हो जा रहा है। बिल्कुल नहीं, अभी गुजार आपके पास 5 मिनट अगर नल खुल के शुरू में आधा घंटा आ रहा खाली पानी। ठीक है, पहले तुम्हें अच्छा आ रहा था। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने पर चीन ने दी मोदी को मुबारकबाद, कहा दोनों ममालिक के साथ ताउन को मजबूत बनाने पुरअज़्म। वज़ीर आज़म मोदी का 8 जून को वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने का इम्कान, काबीना का खुसूसी इजलास। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मरकजी काबीना की सिफारिश पर चारशंबे को 17वीं लोकसभा को तहलील कर दिया। हुकूमत जमहूरियत दस्तूर व सेक्युलर किरदार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे, बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी पर मुबारकबाद, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। हैदराबाद में शाम से बारिश का सिलसिला जारी, कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। इसी के साथ आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।